Welcome everybody to this new lecture of our paper number first mechanics. Today we will continue our discussion about moment of inertia and try to find moment of inertia some other bodies included in your syllabus. So let's start today's topic. You all know that these are the application we are doing nowadays. The work we are doing nowadays is about the application of those two basic theorem of moment of inertia. The first one is the perpendicular axis theorem, and second one is the theorem of parallel axis. And we are doing the work with the application of these two basic theorems. And yet another body is rectangular lamina. The moment of inertia of a rectangular lamina is included in your syllabus. So let's start this topic. And before we start this topic, the moment of inertia of rectangular lamina is a topic which is very similar to the moment of inertia as we computed for a uniform thin rod. This topic is very much similar to that one, and still the outline of today's lecture is about the moment of inertia. The first topic is the moment of inertia of a rectangular lamina, and second one we will trying to do with today's work is kinetic energy of rotation, and the third one is the rolling down on a slopy surface. This is the third topic of today's lecture. So the outline is that the first topic we will try to cover in this lecture is the moment of inertia of rectangular lamina. The second one is the kinetic energy of rotation, and the third one is the rolling down through or on a slopy surface. This is the three topic we will try to cover in this lecture. Okay, so let's start. Moment of inertia of a rectangular lamina. जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर टॉपिक है टू द टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रोड. ओके, सो वहीं से हम इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे. सो लेट ABCD be a rectangular lamina of length small l and breadth b. Let M be, the capital M, be the mass of the lamina with its center at point O. इस तरह की हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है. इसको हमने नेम दिया है A, B, C and D. और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका जो सेंटर है वो है सेंटर पॉइंट O. ओके, इसकी लेंथ को हमने कंसीडर किया है स्मॉल l, और इसकी जो ब्रेथ है उसको हमने कंसीडर किया है स्मॉल b. ओके, सो इस रेक्टेंगुलर लेमिना का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे वो हम दो पॉइंट्स के अराउंड, दो एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वन इज द अबाउट एन एक्सिस passing through its center and parallel to one side. About an axis passing through its center, एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो, एंड पैरेलल टू वन साइड, और किसी भी एक साइड के पैरेलल, या तो इसकी लेंथ के पैरेलल हो या तो इसकी ब्रेथ के पैरेलल हो. तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ की गई है y डैश. इसके अराउंड जो इसके सेंटर से पास होती है, पॉइंट O से पास होती है, और इसकी ब्रेथ के पैरेलल है, यानी इसकी चौड़ाई के समानांतर है. तो हमें इस एक्सिस के अराउंड अबाउट y डैश, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. यह हमारे पास A, B, C, D एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसका सेंटर कैपिटल O है. हमने इसका जो रेक्टेंगुलर लैमिना का मास कंसीडर किया है वो कैपिटल M कंसीडर किया है, और इसकी जो लेंथ को कंसीडर किया है वो स्मॉल l है, जबकि इसकी जो ब्रेथ है वो स्मॉल b है.
पहला जो पॉइंट जिसके अराउंड हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास आउट हो, जिसके सेंटर से पास हो और इसकी एक साइड, किसी भी एक साइड, या तो उसके लेंथ के पैरेलल हो या तो इसकी ब्रेथ के पैरेलल हो, इसके एक साइड के पैरेलल हो। इस तरह के किसी एक साइड एक्सिस के अराउंड हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। So let y dash be the axis through its center and parallel to the side AD and BC। एक y dash हमारे पास कोई एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास आउट होता है और उसकी साइड AD या फिर आप कहें BC, दोनों चूंकि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है तो रेक्टेंगुलर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल्स टू BC। तो ये जो हमारे पास एक्सिस है y डैश, ये इसकी चौड़ाई, आप इसे बहुत ब्रॉडली चौड़ाई से आप इसे कह सकते हैं, इसकी जो रेक्टेंगुलर लेमिना की ब्रेथ है, या तो आप AD कंसीडर करें या तो आप BC कंसीडर करें, इसके पैरेलल है, अबाउट विच इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बी डिटरमाइंड, जिसके विपरीत हमने इसके जड़त्व गुण ज्ञात करना है। सो कंसीडर एन एलिमेंट और ए स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप of the lamina at a distance x from the axis y dash। हमने यहाँ एक स्ट्रिप कंसीडर की है, या आप इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी जो y डैश, जिस एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, इससे दूरी x है, इससे दूरी x है। किससे दूरी x है? इस एक्सिस से, जो हमने इसको नाम दिया इस एक्सिस को y डैश, जिसके परितः हम इसका जड़त्व गुण ज्ञात करना चाहते हैं, यानी अबाउट एन एक्सिस बाय थ्रू विच और अबाउट विच वी वांट टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी और रेक्टेंगुलर लैमिना। सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस by which or about which we want to find or we want to determine the moment of inertia of this rectangular lamina, the distance of this element or rectangular strip from the axis of rotation is x, and the thickness or width of this strip is dx. Okay. So area of the strip, what is the area of the strip? Length of the strip into the breadth of the strip. So area, because this is a rectangular strip, this is a rectangular strip, this element is a shape, has the shape of rectangular, type body. So this strip has breadth B, length B equals to B, and breadth is dx. So area of the strip, length into breadth, so B into dx. Mass per unit area of the lamina, mass per unit area, mass, total mass over area, that's why mass per unit area. एक यूनिट एरिया में कितना मास है, so that is given by m over l cross b, because l cross b gives the area of this whole rectangular lamina. So mass of the strip, जब एक यूनिट एरिया में इतना मास है तो इस पूरे एरिया में कितना मास होगा, so b dx into m by lb. So b is cancelled with b and we are left with m over l into dx. This is the mass of the strip. ठीक है, अब हमारा टास्क कुछ इस तरह का है कि अगर इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं जो हमने यहाँ कंसीडर किए हैं, इस तरह की स्ट्रिप्स को हम कहीं भी कट कर सकते हैं। ये स्ट्रिप यहाँ भी हो सकती है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, पूरी जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लैमिना, इस तरह की स्ट्रिप्स को हम कहीं भी काट सकते हैं। तो एक्चुअली अगर इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करें, चूंकि हमने इसका मास फाइंड आउट कर लिया और इस मास को हमने कहा है dm, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस y डैश के अबाउट, जो इस रेक्टेंगुलर लैमिना के सेंटर से होके जाती है, एक ऐसा अक्ष जो रेक्टेंगुलर लैमिना के सेंटर से होके जाता है और किसी एक साइड के पैरेलल, और इस पर्टिकुलर फिगर में ये इसकी ब्रेथ के पैरेलल है। तो अगर इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट फाइंड कर लें, इस एक्सिस y डैश के, इस एक्सिस y डैश के अराउंड हम फाइंड कर लें,
तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होंगी फ्रॉम द साइड AD टू साइड BC, हम उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम इस पूरी रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट एक्सिस y y डैश। क्योंकि इस तरह की जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो साइड AD और साइड BC के बीच में ही होंगी। तो अगर हम यहां से यहां तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनका इंटीग्रेशन कर दें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस स्ट्रिप का फाइंड करें और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें फ्रॉम द साइड AD टू साइड BC, तो हम इस तरह से इस पूरी रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट एक्सिस y y डैश, अबाउट एक्सिस y y डैश। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट एक्सिस y y डैश, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम साइड AD टू साइड BC, और हम कहेंगे कि इस तरह से हम इस पूरी रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे अबाउट एक्सिस y y डैश, अबाउट एक्सिस y y डैश। सो लेट्स डू दिस। So mass of the strip is dm is equals to m over L into dx. So moment of inertia of the strip about axis y y dash is, say this moment of inertia is di, because the mass is to be considered as dm. So di into dm into x square. What is x square? X square is the distance, square of the distance of this element or strip from the axis of rotation. This is actually the mathematical description of moment of inertia. Okay, so di equals to, what is the value of dm as calculated earlier, is m by L into dx. So m by L into dx into x square. This is the moment of inertia or final moment of inertia of this strip about axis y y dash. और इस तरह की सारी strips कहां से कहां तक हो सकती हैं, AD से BC तक हो सकती है। यानी इस L/2 से 0 तक, चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे L/2 है तो माइनस कंसीडर किया जाएगा, और ये जो L/2 डिस्टेंस है ये राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अगर आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को क्या कंसीडर करें, ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है तो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी चूंकि राइट हैंड साइड पे। अब इन डिस्टेंसेस को हम कंसीडर कर क्यों रहे हैं, चूंकि हमें अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में बात करनी है। अब जो स्ट्रिप्स, इस तरह की स्ट्रिप्स कहां से कहां तक हो सकती है, या तो वो मिनिमम AD पे हो सकती है या तो मैक्सिमम BC तक हो सकती है। यानी ये जो साइड है AD और ये जो साइड है BC, इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो अगर इस पूरी रेक्टेंगुलर लेमिना का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एक्सिस y y डैश, तो इस तरह की जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमें उन सब का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा बिटवीन दीज टू लिमिट्स। ओके, सो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the lamina about the axis y y dash is equal to the integral of above expression, this expression between the limits x equals to minus L/2 to x equals to plus L/2. These limits taken as minus L/2, and we earlier discussed about this, why we take these limits as x equals to minus L/2 to x equals to plus L/2. Okay, so let's see this. So moment of inertia of the whole rectangular lamina about an axis passing through its center and perpendicular, or sorry, parallel to one side, is di, integration of the left hand side to the integration of right hand side, because these are the limits of x. So acting on x only, m by L is a constant quantity, so coming out of the integration, m by L is coming out of the integration, and we are left with minus L/2 to plus L/2. This is the lower limit of x, this is the upper limit of x, x square dx, and by the integration we can write these two limits as minus pi/2 to plus pi/2, as 2 is multiplied by the integration and limits is now
0 to L/2. सो x स्क्वायर dx, एक इंटीग्रेशन का लॉ हम इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में ये पढ़ते हैं कि अगर लिमिट्स -π/2 टू +π/2 या -θ टू +θ या -φ टू +φ हो, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, एक फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट्स हो जाती है 0 to L/2, 0 to π, 0 to θ, 0 to φ, जो भी लिमिट्स हों. So 2 because of integration factor m/L is already there, so integration is left with 0 to L/2. The lower limit is 0 and the upper limit is L/2. X square dx. Now the integration of this quantity x square, x cube by 3 is simply x cube by 3. So 2m/L into x cube by 3 limits 0 to L/2. 2m/L is same, and when you put upper limit here in place of x, so we can get L cube by 24, and when you put lower limit, the result is 0. So left that result. So 2m/L, and this factor gives me L cube by 24. So 2 is cancelled with 24 is cancelled with 2, gives you 12, and 1 power of L cube is cancelled with 1 power of L, so gives you L square. So actually I is equals to ml square by 12, ml square by 12. इस तरह का रिजल्ट आप पहले भी पढ़ के आए हैं, इस तरह का रिजल्ट आपने पहले भी पढ़ा है. देखिए, as we will readily seen, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, if b is small, the rectangular lamina decrease or becomes a rod of length L. अगर b बहुत छोटा है तो ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है एक यूनिफॉर्म थिन रोड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर इस ब्रेथ को हम बहुत छोटा कंसीडर कर लें, इस ब्रेथ को हम बहुत छोटा कंसीडर कर ले, इतना छोटा सा कंसीडर कर ले, तो एक्चुअली जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है यही क्या बन जाएगी, एक यूनिफॉर्म थिन रोड बन जाएगी. तो इसी कारण जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये मैच करता है किससे, about by the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the center of the rod and perpendicular to its length. Okay, about one side, अगर one side से हम कैलकुलेट करना चाहिए, यानी एक अब हमारे पास एक ऐसा एक्सिस है, यहाँ हमारे पास एक ऐसा एक्सिस है जो या तो इसकी साइड AD से होके जाए या तो इसकी साइड BC से होके जाए. तो देखिए, मैं आपको यहाँ हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ब्लैक पेन के थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको लगानी है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक पेन है ये कहाँ से पास हो रहा है, इसकी साइड AD से पास हो रहा है, ये इसकी साइड है AD, तो ये ब्लैक पेन कहाँ से पास हो रहा है, इसकी साइड AD से पास हो रहा है. अब अगर मुझे इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस ब्लैक पेन, और यू कैन से दैट अबाउट AD बाय द फिगर, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने के लिए मुझे इस ब्लैक पेन के पैरेलल एक एक्सिस के थ्रू इस बॉडी का, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए, अगर मुझे यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी है. तो ये ब्लू पेन है, इसके थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है. अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लैमिना एंड पैरेलल टू वन साइड, दिस पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लैमिना एंड पैरेलल टू वन साइड, तो इसके थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है. तो ब्लैक पेन के थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ब्लू पेन के थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पहले से ही पता है. अब बचती है दो बातें. द मास ऑफ द लैमिना इज टू बी कंसिडर्ड एज M, कैपिटल M, and distance between these two axes, and the distance between these two axes you clearly see here, L/2. The distance between these two axes, the parallel axis, because these are two parallel axes, that's why the name of the theorem is as theorem of parallel axis. तो मुझे ब्लैक पेन के थ्रू
यानी ब्लैक पेन पास होता है इसकी एक साइड से, इसके थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ, इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और ब्लू पेन के थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए फॉर द यूज ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो मुझे पता भी है, अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना about an axis passing through its center and parallel to one side, that is ml square by 12 as we calculated earlier. So इस ब्लैक पेन के थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो लेट्स यूज द थ्योरम ऑफ parallel axis to find the moment of inertia of this rectangular lamina about one side. You can use AD or BC. Now this side. अब भी आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं. अब आपको इस BC के अराउंड, ये जो मेरे पास साइड है BC, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो मैंने इस पेन को यहां से पास करा दिया BC से. अब अगर BC के अबाउट मुझे इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो जरूरी ये है कि BC के पैरेलल मुझे एक किसी एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए. तो ये जो ब्लू पेन है, इस एक्सिस के थ्रू, जो मैंने y बाय डैश कंसीडर किया है, इस एक्सिस के थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता है, एंड दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. तो अब दो बातें बचती है. द मास ऑफ द लेमिना इज कंसीडर टू बी m and the distance between these two axes, that is equals to L by 2. That is equal to L by 2. तो अब भी आप आराम से यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू दिस. So the moment of inertia of the rectangular lamina about one side. So using the theorem of parallel axis, and this is the statement of theorem of parallel axis, that is I inertia about AD, that is the one side of rectangular lamina, or inertia about BC, that is equals to Ig, the inertia about gravity, plus m, the mass of the body, and r, the distance between the two, square of the distance between the two parallel axes. So inertia about AD or BC is as it is. Inertia about gravity in this case is inertia about y dash, plus m is the mass of the lamina, and r, the distance between the two parallel axes, is L by 2. Because of square of r, here is the square of L by 2. Okay, so inertia about y dash is ml square by 12. Inertia about y dash is ml square by 12 plus ml square by 4. And when you take LCM of this quantity, you can get I about AD, that is inertia about AD or BC, is equals to ml square by 3. This is again the same result as we get into the case of a uniform thin rod. This is the inertia or moment of inertia about an axis passing through the center of the rod, and perpendicular to its length is I inertia is ml square by 12, and this is the about an axis through one end of the rod and perpendicular to its length is equals to ml square by 3. So that's why this region is again ml square by 3, and the rectangular lamina is considered to be as a uniform thin rod if the breadth of the lamina is considered to be very small. Okay, so this is all about the rectangular lamina. Okay, so let's move to the next one, the kinetic energy of rotation. The kinetic energy of rotation. तो kinetic energy of rotation में होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, चाहे वो रेगुलर साइज की बॉडी है या इरेगुलर साइज की बॉडी है, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न. सो मुझे अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ ये रोटेटरी मोशन हो रहा है। क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट है, जब हमने इस कंसेप्ट को शुरू किया था वहीं से हमने कहा था कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम सीखने की कोशिश कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो हमने वहीं कंसिडर ये किया था कि जो ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, वही रोल रोटेटरी मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। जैसे अगर कोई भी बॉडी जो ट्रांसलेटरी मोशन में रेस्ट में है, अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो उस बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, और अगर उस बॉडी का मास कम है तो उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करने में या उसको लीनियर मोशन कराने में आपको कम फोर्स की जरूरत होगी। ठीक इसी तरह से जो कपल या फिर हम उसको टॉर्क भी कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन के लिए जरूरी फोर्स है, अगर किसी बॉडी को आपको रोटेशनल मोशन कराना है तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का ज्यादा है तो आपको ज्यादा कपल की जरूरत पड़ेगी या रोटेटरी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो वो कम ही फोर्स या कपल से रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप उसे कह सकते हैं। जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं 1/2 या हाफ mv स्क्वायर, दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, नॉट रोटेशनल। यहाँ जो बॉडी मोशन करती हैं वो मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एक ही जगह क्या करती है, किसी एक्सिस के अराउंड क्या करती रहती है, रोटेशन करती रहती है। तो अब हमें इस रोटेटरी मोशन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M rotating with angular velocity omega about an axis y dash passing through its center and center of mass capital O as shown in the figure। ये हमारे पास एक irregular shape की बॉडी है जो इस एक्सिस जो हमने कंसीडर किया है y डैश, इस एक्सिस के थ्रू रोटेशनल मोशन कर रही है, और ये एक ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास O से पास आउट होती है, और हम ये भी कह सकते हैं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ से पास आउट होती है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और पोजीशन ये भी है कि इसके ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट होती है। ओके, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी हैज 0 लीनियर वेलोसिटी। आपको ये पता है जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, 0, एंड इट इज thus a case of pure rotation। तो यहाँ ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेट लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी कंसीडर की है, 0, हैज 0 लीनियर वेलोसिटी। तो ये केवल एक प्योर रोटेशनल का केस है, प्योर रोटेशन का केस है। ऑब्वियसली the body possesses kinetic energy in the virtue of its motion of rotation, which therefore called as the kinetic energy of rotation। Okay, the body is made up of a large number of particles। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इस टॉपिक को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भी, चाहे वो रेगुलर शेप की बॉडी हो या इरेगुलर शेप की बॉडी है, इसको हम किसी भी बॉडी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि that body is made up by an infinite number of particles, और उन पार्टिकल्स के मास को हमने कुछ इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं m1, m2, m3 एंड अप टू एज एक्स्ट्रा एट रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। और इन मासेस की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज r1, R2 एंड R3। इन मासेस की जो, इस मासेस को जो m1 कह रहे हैं, इस मास को हम m2 कह रहे हैं, इस पार्टिकल के मास को हम m3 कह रहे हैं, इन मासेस की जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
from the axis of rotation is to be considered as r1, r2 and r3. This the respective distances are r1, r2 and r3 as extra from the axis y dash through O. As the angular velocity of all the particle is same, that is omega. ये जो ओमेगा है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो चाहे पार्टिकल m1 हो या m2 हो या r3 m3 हो, चाहे इसकी डिस्टेंस यहाँ से r1 हो, r2 हो, r3 हो, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is not dependent on the masses and as well as the respective distance from the axis of rotation. Okay, so ये m1 पार्टिकल के लिए भी ओमेगा होगी, m2 मास के पार्टिकल के लिए भी ओमेगा होगी और m3 मास के पार्टिकल के लिए भी ये ओमेगा होगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जितने जिससे भी ये बॉडी मिलकर बनी हुई है, उन सभी पार्टिकल्स के लिए इन सभी पार्टिकल्स के लिए जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उन सभी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, ओमेगा ही रहेगी. दैट इज ओमेगा इज ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स बाय विच दिस बॉडी इज मेड अप. देयर लीनियर वेलोसिटीज आर v1 r1 ओमेगा, v2 r2. ऐसा होता क्यों? देखिए जब आप ओमेगा की बात करते हैं, तो ओमेगा की बात आप जब करते हैं तो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो बाय डेफिनेशन आप बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement with respect to time. ये होती है क्या? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा को अगर हम कंसिडर करें, तो ओमेगा होता क्या है? डी थीटा बाई डी टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज of time with respect to angular displacement d theta by dt. अब ये जो क्वांटिटी है ओमेगा, ये पार्टिकल चाहे m1 मास का हो, m2 मास का हो, m3 मास का हो, चाहे उसकी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 हो, r2 हो, r3 हो, कितनी भी हो, आप इस फॉर्मूले को देखिए, क्या ये मास पे डिपेंड करता है कहीं से कहीं तक भी, या तो ये फिर कहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं करता. इसी कारण ये जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स बाय विच द बॉडी इज मेड अप इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, बिकॉज दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसी कारण ये सेम है. लेकिन अगर आप ये कौन सी वेलोसिटी हुई? ये हुई एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अगर आप बात करें लीनियर वेलोसिटी, की बात करें, अब लीनियर वेलोसिटी का हम फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, v = r ओमेगा. अब देखिए लीनियर वेलोसिटी जो v से हम जिसको डिनोट कर रहे हैं, वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ ओमेगा पे डिपेंड करती है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. अब एंगुलर वेलोसिटी तो हमने कह दिया कि ये सब पार्टिकल्स के लिए एक जैसी है, यानी ये क्वांटिटी तो हो गई कांस्टेंट. क्वांटिटी क्या हो गई? कांस्टेंट. अब जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑन विच दिस क्वांटिटी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज डिपेंडेंट इज ओनली स्मॉल r. एंड व्हाट इज r? r is the distance of particle from the
एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए जब हम m1 मास के पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, इस मास के पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, m1 मास के पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसकी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, r1 है, तो उसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी m1 मास के पार्टिकल के लिए, m1 मास का जो ये पार्टिकल है, इसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, से v1 is equals to r1 omega, because the distance from the axis of rotation is r1। इसी तरह से जो m2 मास का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है m2 मास का, इसकी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, r2 है। तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, v2 is equals to r2 ओमेगा। अब ये m3 मास का पार्टिकल है, इसी के लिए हम सेम लॉजिक यूज करेंगे, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, r3। तो इसी तरह से जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स है, चाहे आगे कितने भी पार्टिकल हों, उनका हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉजिक ये आया यहां से समझ में कि हालांकि इन सभी पार्टिकल्स का, जिनका मास चाहे m1 है, चाहे m2 है, चाहे m3 है, इन सभी मास के पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, ओमेगा 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 सेम है, लेकिन इन सभी मासेस की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग है। m1 मास के पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v1, m2 मास के पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v2, m3 मास के पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v3। तो इस तरह से हम इनकी लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंट डिफरेंट नोशन दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि these particles have different linear velocity। say v1 is equals to r1 omega is the linear velocity of the particle of mass m1, v2 is equals to r2 omega is the linear velocity of the particle of mass m2, and v3 is the linear velocity, v3 is equals to r3 omega is the linear velocity of the particle of mass m3 and up to as extra। तो अब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ गई है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी चूंकि दो बातों पर निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी। पहली बात है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² या हाफ mv², ये मास पे डिपेंड करती है और लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो आप ये देख रहे होंगे इस फिगर में कि यहाँ पार्टिकल का मास भी अलग है और लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरह की है। यानी ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये है पार्टिकल m1 की, जिसका मास m1 है। ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये है पार्टिकल m2 की, और ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये है पार्टिकल ऑफ मास m3। तो अगर मैं इस मास के पार्टिकल केवल m1, केवल इस मास के पार्टिकल की मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं ke1 या सिंपली k1 भी कह सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m मास ऑफ द पार्टिकल। कितना है मास ऑफ द पार्टिकल, m1, और वेलोसिटी, एंड विच वेलोसिटी, this is the linear velocity, and the linear velocity of the particle of mass m1 is v1, and v1 is equals to r1 omega। so r1 omega, and because v squared, so that's why r1 omega squared। okay, so this is equals to half m1 r1 square omega square। yes, so this is the kinetic energy of rotation of the पार्टिकल ऑफ मास m1। और इसी तरह से हम m2 मास के पार्टिकल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और m3 मास के पार्टिकल के लिए भी हम सेम लॉजिक यूज करके इनकी काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म की होगी, द काइनेटिक एनर्जी of rotation
of particle of mass m1 is equals to, say this is the kinetic energy k1 is equals to half m1 v1 square, and because we know that the value of v1 or the on putting the value of v1 from this relation v1 is equals to r1 omega, we can get the kinetic energy of particle of mass m1, that is equals to k1 is to half m1 is same, and in place of v1 we can put r1 omega. So r1 omega, r1 omega, so put here r1 omega and square because of v square, v1 square, and we can get the final relation as half m1 r1 square omega square. This is the kinetic energy of rotation of particle of mass m1. Similarly, for the particle of mass m2, the kinetic energy is k2 half m2 v2 square, and the value of v2 from here is r2 omega. So put here v in place of v2 r2 omega, and when you put r2 omega in place of v2, then easily you can get this relation again, half m2 r2 square omega. This is the kinetic energy of rotation of particle of mass m2, and similarly you can do it for the particle of mass m3, and the kinetic energy of rotation of the particle of mass m3 is equals to half m3 r3 square omega square. And in the same way you can get the energy of rest of the particle, although there are infinite number of particles by which the body is made up, and it is impossible to write the kinetic energy of rotation for all the particles. So you can use this as extra term for the rest of the particles, okay? And in this way you can get the total kinetic energy of rotation of all the particles, okay? So in this way you can write the total kinetic energy of rotation of the body is k, the total energy k, because this is a scalar quantity, the energy is a scalar quantity, so you can you don't have to need the direction like quantity to deduce the total kinetic energy of rotation of the body. So easily sum up there all the kinetic energy, that is the kinetic energy of the first particle, that is the mass kinetic energy of the particle of mass m1 plus kinetic energy of the particle of mass m2 plus kinetic energy of the particle of mass m3. So k1 plus k2 plus k3 up to this. So the value of k1 is half m1 r1 square omega square. The value of k2 is half m2 r2 square omega square, and the value of k3 is half m3 r3 square omega square, and plus up to 2 plus up to 2. Because we cannot write here the total kinetic energy for all the particles, because it is an impossible work to do. So half is common from here, 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 and rest of the term. So half is common. Here is m1 r1 square, and omega square is also common. Look at here, omega square is common in the second term, omega square is common into the third term, and omega square is also common from rest of the terms. So omega square is common, okay? So look at this term, m1 r1 square, the moment of inertia of the first particle of mass m1, the moment of inertia of the particle of mass m2, the moment of inertia of the particle of mass m3 from the axis of rotation. This bracketed quantity m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and plus up to, and this can be write as summation I m1 mi ri square omega square, and this is the moment of inertia of whole the body, that is equals to I. So we can write the kinetic energy of
rotation. Kinetic energy of rotation is equals to half I omega square, because when you put summation I mi/ri square is equals to I here in this relation, so half in place of this quantity is I and omega square from here. So the kinetic energy of rotation of the body is to be calculated as half I omega square. This is all about our second topic, the kinetic energy of rotation. Okay. Now moving towards the third topic and the final topic of today's lecture is rolling along a slope. यानी जब आप रोल आउट करते हैं किसी स्लोप पे किसी बॉडी को, द केस ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो एक इस तरह का केस है कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, और जनरली जो रोलिंग शेप की बॉडी होगी या तो वो एक सर्कुलर सिलेंडर ले सकते हैं, हम उसको सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, एक स्फेरिकल सेल हो सकता है, इस तरह की बॉडी को हम कंसीडर करेंगे. ठीक है. और रोलिंग अलोंग अ स्लोप, जब कोई बॉडी रोल डाउन करती है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वहाँ क्या कंडीशंस होती हैं, वहाँ क्या शर्तें होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके. सो दिस इज अगेन अ टॉपिक इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. So let's start it. So let us consider a body of circular symmetry. और circular symmetry से हमारा मतलब है या तो वो कोई डिस्क हो सकती है बॉडी, या वो कोई स्फीयर हो सकता है, या कोई वो एक सिलेंडर हो सकता है, लेकिन सर्कुलर हो, जो लुढ़कने में सक्षम हो. लुढ़कने में, अब रेक्टेंगुलर लेमिना को अगर आप किसी स्लोपी सरफेस पे रखेंगे तो क्या वो लुढ़क जाएगा? नहीं लुढ़क सकता. तो जरूरी ये है कि एक सर्कुलर सिमेट्री की बॉडी को आप वहां प्लेस करें ताकि वो लुढ़कने में सक्षम हो, स्लोपी सरफेस पे वो रोल डाउन कर सके. ओके. सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ सर्कुलर सिमेट्री लाइक एज अ डिस्क, और यू कैन से इट एज सर्कुलर डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, एज एक्स्ट्रा, ऑफ मास कैपिटल एम. इस बॉडी का जो मास हमने कंसीडर किया है वो कैपिटल एम. रोल फ्रीली डाउन अ प्लेन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा. ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है वो कितना इंक्लाइन करता है? थीटा इंक्लाइन करता है. एंड रफ एनफ, और इतना रफ है टू प्रिवेंट द स्लिपिंग. तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, इतना ये रफ सरफेस है कि ये केवल रोल कर सकता है, स्लिप नहीं कर सकता. And hence any work done by the friction. Okay. If V be the linear velocity acquired by the body, इस body के हमने linear velocity को V consider किया है on covering a distance S along the plane. Okay. यहाँ से यहाँ तक ये जो distance cover करके आई है body, उसको हमने consider किया है S. ये वाला जो distance है वो कितना है? S है. Its vertical distance of descent is equals to s sin theta. आप सिंपली ये कह सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है और इस पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड एक कोई लाइन आप कंसीडर कर लें, तो ये लाइन भी इस स्लोपी सरफेस से कितना एंगल बनाएगी? थीटा. और चूंकि ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची है और इसने इस समय में ये जो डिस्टेंस कवर की है ये s है, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? s sin थीटा. सिंपली चूंकि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इसका लॉन्ग कंसीडर करें, हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो साइन थीटा वाली कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिसेंट है ये कितनी आ जाएगी? s sin थीटा आ जाएगी. हेंस द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी, क्योंकि हाइट कम हुई है बॉडी की, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg into s sin theta. से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. This is equation number first. Now this must be equal to the kinetic energy gained by the body. अब जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्यों आया है? क्योंकि आप ये देखिए कि इस फिगर को हम कंसीडर करें तो यहाँ जो
बॉडी का हॉरिजॉन्टल हाइट है, वर्टिकल हाइट है, तो वो ज़्यादा है, और ये जब इस पोजीशन पे है तो यहाँ कम है। तो जाहिर सी बात है कि बॉडी की जब यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची है ये बॉडी, जो एक सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल सेल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, तो इस बॉडी की हाइट में कमी आई है। हाइट में कमी आने से इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतना ही गेन किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज किया और हमने कहा कि 10 मस्ट बी इक्वल टू the kinetic energy gained by the body, that is equal to its kinetic energy of rotation plus kinetic energy of translation। तो रोटेट भी हो रही है, ट्रांसलेट भी हो रही है, दोनों मोशन है। So the total kinetic energy gained by the body is half I omega square, that is the kinetic energy of rotation, we studied earlier it, and half mv square, that is the kinetic energy of translation. This is the kinetic energy of rotation and this is the kinetic energy of translation. So half mk square omega square, I is written as mk square omega square, and plus half mv square is same, where I is equals to mk square, where k is the radius of gyration, okay, of the body about the axis passing through its center of mass, and omega is equals to v over r. You can read it, v is equals to r omega, hence the total kinetic energy gained by the body is half mv square, is common from this relation, half mv square, and we are left with k square from here, and r square by this relation. Put omega is equals to v by r here, v by r. So you can get from here is half mk square v square over r square. That's why this r square, k square over r square plus 1. This term is k square over r square plus 1. K square over r square plus 1. So this is equation number second. So equating equation number first and second from the law of conservation of energy, ये भी total kinetic energy और ये भी ये potential energy, that is given by equation number first. So half mv square is equals to k by r square plus 1 is equals to mg into s sin theta. This is the potential energy lost by the body is equal to the kinetic energy gained by the body, because जितना potential energy में loss होगा ठीक उतना ही gain होगा kinetic energy by the law of conservation of energy. So m is cancelled with m, and we are left with v square, this, and k square plus r square over r square from this factor. 2 is multiplied by the right hand side, so 2g sin theta into s. So v square given by 2 r square, the value of v square from here. So r is cross multiplied, so 2 from here, r square from the denominator of the left hand side, r square, and g sin theta into s, is from the right hand side, and into the denominator for the calculation of v square is k square plus r square. So actually the value of v square is equals to 2 r square over k square plus r square g sin theta into s. This. Comparing it with the kinematic relation, v square is equals to 2as for a body starting from rest. Kinematic relation हम पढ़ के आते हैं from the equation of motion, Newton's equation of motion. This is the third equation of motion, v square equal to u square plus 2as, and because the body is starting from rest, the initial velocity is 0, that's why v square is equals to 2as. Okay, so put the value of v square equals to 2as into this equation, we can get
In place of v square, you can use 2as. So in place of v square is 2as is equals to 2 and the same right hand side. So 2 is cancelled with 2 and s is cancelled with s. So the acceleration quantity, the acceleration of the body is equals to r square plus k square plus r square into g sin theta. That is, the acceleration is proportional to this quantity r square over k square plus r square for a given angle of inclination theta on the of the plane. This that is, the acceleration is proportional to r square over k square plus r square. A square is proportional to this factor for a given angle of inclination theta of the plane. Okay, so this relation gives you the acceleration of that body rolling down on a slopy surface. Okay, so this clearly the two things is very much clear here. The first thing is, first, greater the value of k as compared to r, the smaller the acceleration of the body rolling down along the plane, and hence greater the time taken by it in reaching the bottom of the plane. जितनी वैल्यू k की बड़ी होगी r के कंपैरिजन में, उतना ही एक्सीलरेशन बॉडी का कम होगा, और जब एक्सीलरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी बॉटम तक टाइम लेगी पहुंचने में वो ज्यादा लेगी पहले से. सेकंड पॉइंट ये है कि द एक्सीलरेशन एंड हेंस टाइम ऑफ डिसेंट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी पे कोई डिपेंड नहीं करता. यानी चाहे आप बड़े मास की बॉडी लें, कोई बहुत बड़े मास की बॉडी ले या छोटे मास की बॉडी ले, एक्सीलरेशन उस बात पे डिपेंड नहीं करता, ना ही टाइम उस बात पे डिपेंड करता है. ओके, स्पेशल केसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन आपके पेपर में पहले भी पूछी गई हैं. तो ये कुछ स्पेशल केसेस है, और इस तरह के स्पेशल केसेस केवल यहाँ तक आप सीमित ना रखें अपने आप को कि यहाँ केवल मैं एक सॉलिड स्फीयर का केस करा रहा हूँ और एक होलो स्फीयर का केस करा. जितनी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करके आए हैं, जितनी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करके आए हैं, चाहे वो आपके पास सर्कुलर डिस्क हो, रिंग हो, जितनी भी बॉडी रोल डाउन कर सकती हैं, उन सब के बारे में ये शर्तें लागू हो. तो स्पेशल केस हम स्टडी कर लेते हैं, पहला सॉलिड स्फीयर का और दूसरा होलो स्फीयर का. देखिए सॉलिड स्फीयर के बारे में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट अ डायामीटर अबाउट विच इट्स रोल्स इज इक्वल्स टू 2/5 mr². हम स्टडी करके आए हैं. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है, 2/5 mr². सो हेंस I इक्वल्स 2/5 mr², और I इक्वल्स टू mk². अभी आप स्टडी करके आए, द रेडियस ऑफ k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो m इज कैंसिल्ड विद m एंड द वैल्यू ऑफ k² इज 2/5 r². सो k² over r² इज 2/5. सो यूज दिस रिलेशन. Acceleration is r² over k² plus r². When you coming down this numerator term r² into the denominator, then r² is cancelled with r² and k² over r² plus 1. This relation, k² plus r², k² over r² plus 1. This. So k² over r² has value 2/5. So the acceleration of the solid sphere is equals to g sin theta over 1 plus k² over r². G sin theta 1 plus 2/5, the value of k² over r², and the result is 5/7 g sin theta. 5/7 g sin theta. So the acceleration is a is equals to 5/7 g sin theta. The acceleration of the solid sphere about its diameter is equals to 5/7 g sin theta. When you know the angle of inclination, then you can easily calculate the acceleration. 5/7 and the value of g on the earth surface is 9.8 meter per second square, and the value of sin theta, if theta is 30 degree, then you can put here 1 sin 30, that is 1/2, and you can easily
calculate the value of acceleration, that is given by 5/7 into 9.8 into 1/2 for the angle of inclination is equals to 30 degree. That gives you the acceleration of this solid sphere about its diameter. And the second case we want to discuss here is the case of hollow sphere. Okay, the moment of inertia of a hollow sphere about diameter about which it rolls is equals to 2/3 mr square. So simply I is equals to 2/3 mr square can be equals to mk square, the formula of radius of gyration, moment of inertia in terms of radius of gyration. So m is cancelled with m and k square is equals to 2/3 r square. So the value of k square over r square is equals to 2/3. So hence the value of acceleration is g sin theta over 1 plus k square over r square. The value of k square over r square is equals to 2/3. So put here k square over r square is equals to 2/3 and you can get the value of acceleration is equals to 3/5 g sin theta. For example, आप ये केस कर सकते हैं, g इक्वल टू आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है और थीटा अगर 30 आप कंसीडर कर लें, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और होलो स्फीयर का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड लुक एट दिस formula, there is no dependence of acceleration on the mass of the body, either it is solid sphere or a hollow sphere. This is all dependent on this ratio k square over r square and angle of inclination. So you can easily see that for the same factors the acceleration gained by the solid sphere is greater as compared to the acceleration gained by the hollow sphere. Okay, so this is all about the case in which a body is rolling down on a slopey surface. Okay, so dear students, this is all about the unit number 2. This is all about the unit number 2, and in the next lecture we will continue our discussion about unit number 3, the gravitation. Okay, so this is the completion with this lecture. This is the completion of unit number 2, and from the next lecture we will start our new unit number 3 of mechanics, that is gravitation. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.